Good evening, everyone. Today we are going to learn one more learning theory given by Jean Piaget. His theory is known as the theory of cognitive development or the theory of intellectual development. Okay. But before starting this theory, let me clear some doubt. Okay. जैसे कि आप लोगों ने भी मुझे पूछा कि मैम that theory comes under cognitive psychology or constructivism. Okay. So the doubt is obvious because in somewhere in some books or some syllabus you can read Piaget's theory of radical constructivism or Piaget's theory of constructivism. That's why you get confused. पहले मैं आपको ये clear कर देना चाहती हूँ. See, Piaget has given his theory of cognitive development under cognitive psychology, but in case theory को we are keeping under cognitive constructivism. As in my previous lectures, I talked about the various categories of constructivism. Like we are having cognitive constructivism, we are having social constructivism, and we are having radical constructivism by Ernest von Glasersfeld. And social constructivism by Lev Vygotsky. But the theory of Piaget's theory of cognitive development comes under cognitive constructivism. ठीक है? How this theory comes under constructivism? Okay, let me tell you what happened according to constructivism or constructivist view of teaching and learning. What constructivism is? Okay, in one word we can say. In constructivism, people interpret their environment and their experience in the light of their previous knowledge and experience. ठीक है, मीन्स कंस्ट्रक्टिविज्म में हम जो भी नया जानते हैं ना या फिर जो भी न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं या बनाते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस. ओके, बट सो द सेम विद द Piaget's theory of cognitive development. They talked about the cognitive development aspect and the cognitive structure, means how child develop their cognitive structure as they are coming in the contact of social and physical world, and with the help of their cognitive structure, जिसको उन्हें स्कीमा का नाम दिया, they are following certain process of cognitive functioning they are doing, and slowly they learn new things, they discover new things. Okay, so just because of that we are viewing Piaget's theory of cognitive development as constructivist theory also. Okay, so now just move towards the theory in detail. So as we know that Piaget was a Swiss biologist, but he has a strong liking towards the psychology. Okay. He completed his PhD in natural history, and after that he joined Carl Jung and Simon as their mentor, and they have given him some responsibility also in a psychological lab. And as Carl Jung and Simon, they were working on the scale of Binet. Okay, as you know that Binet has given a scale for intelligence, जिसको with certain modification still we are following. Okay, so वहाँ से Piaget has developed his interest in the area of cognitive and cognitive development. Okay, for that he observed so many learners, so many children, and he observed that children are not less intelligent than adults. Okay, बच्चे कहीं से भी उनके इंटेलिजेंस में कुछ कमी नहीं होती है. They are as intelligent as the adult. The major difference is just the way they think and view the thing. बच्चे जिस तरह से थिंग को देखते हैं और व्यू करते हैं उनमें डिफरेंस है. अदरवाइज they are as intelligent as the adult. Okay, so after this he was so much fascinated in the theory of cognitive development that he had 3 children, and उन्होंने अपने सारे 3 children को one by one during from their infancy to their adolescent period, he studied their behavior, he studied their intellectual growth, he studied their process of maturation and intelligence, because he was believing that our developmental stage and our intelligence has go side by side. Okay, so उन्होंने अपने खुद के 3 बच्चों के ऊपर जो है अपने स्टडी को फोकस किया. उनका जो इन्फेंसी से लेके जो उनका एडोलेसेंट तक का जो पीरियड था उसको इन्होंने देखा. And after that and after the analysis, because it's also example of fundamental or basic research, and then he come up with the theory of cognitive development or intellectual development. Okay,
So in this theory, he talked about the cognitive structure, what is the cognitive structure of human mind, how human mind function, and what is the mental processing which is responsible for our learning. Okay, and there he has given two important concepts, that is cognitive functioning and cognitive structure. Okay, he talked about that in our mind, जब भी हम कोई चीज को लर्न करते हैं या फिर we try to learn anything, so there is a two type of processing which goes on inside our mind, that is cognitive functioning and cognitive structure, and these two are responsible for our learning, and with the help of these two we learn new things and we change our behavior. Okay, so first, what is cognitive functioning and what is cognitive structure? Okay, so first we have to know what is cognitive structure. Okay, for defining cognitive structure, he given a word, that is schema. Okay, you must have read this word in book, schema. Okay, and what is this schema? Schema is generally, if you talk, it is a mental cognitive structure और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड. मीन्स क्या होता है कि देखो, जब बच्चे पैदा होते हैं, ओके, तो सपोज व्हेन चाइल्ड इज बॉर्न, जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, देन ही हैज अ वेरी लिमिटेड स्कीमा. जब भी कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो ही नोज ओनली हाउ टू ब्रीथ, ही नो ओनली हाउ टू सक मदर्स मिल्क. ओके, उसके अलावा उसके पास कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट करने का, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करने का उसके माइंड में कैपेसिटी नहीं है. बट वो पैदा होता है विथ सर्टेन स्कीमा, एंड दैट स्कीमास आर नोन एज इनबॉर्न रिफ्लेक्स. उस स्कीमा को हम लोग क्या बोलते हैं? इनबॉर्न रिफ्लेक्स, जिनके साथ बच्चा पैदा होता है. क्योंकि जस्ट आफ्टर बर्थ, इफ चाइल्ड कांट ब्रीथ, इफ चाइल्ड कांट सक मदर्स मिल्क, हाउ द चाइल्ड कैन सर्वाइव. तो हमारे सर्वाइवल के लिए देयर आर सर्टेन स्कीमास विच जिसको हम लोग इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, दे आर देयर इन आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. एंड जैसे जैसे चाइल्ड क्या होता है, दे कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ सोशल एंड फिजिकल वर्ल्ड, मोर स्कीमा चाइल्ड फ्रेम, उसका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में मोर स्कीमास बनते जाते हैं. क्योंकि स्कीमास आर आवर कंस्टिट्यूट, क्योंकि स्कीमा जो है दे गिव अस आवर पैटर्न ऑफ बिहेवियर. ओके, हम कैसे कि छोटा बच्चा जब होता है दे डोंट नो एनीथिंग, बट स्लोली एंड स्लोली दे लर्न सो मेनी थिंग्स. तो हाउ दे लर्न बिकॉज वो जब भी वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आके दे आर एक्वायरिंग, दे आर अडेप्टिंग टू मोर स्कीमाज, एंड वो स्कीमा उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन में उनको हेल्प करते हैं. सो दैट ही टॉक्स अबाउट द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, दैट वी ऑल आर हैविंग स्कीमाज. जो बर्थ के टाइम क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है, एंड स्लोली वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है. जैसे जैसे हम सोशल और फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड उससे हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो भी और क्या हो जाता है, एक्सपेंड करते जाता है. इसलिए हम लोग बोलते भी हैं, द मोर यू एक्सपोज द मोर यू लर्न. आप जितना एक्सपोज करते हो उतना आपका क्या होता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एक्सपेंड करता है थ्रू न्यू स्कीमास, एंड मोर यू लर्न. ओके, एंड देन आफ्टर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ही टॉक अबाउट कॉग्निटिव फंक्शनिंग. ओके, सो कॉग्निटिव फंक्शनिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, तो जो हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, लिमिटेड है. बट एज वी आर कमिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ आवर फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है इट कीप ऑन इंक्रीजिंग. बट वो जो इंक्रीज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग. ओके, मीन्स हमारे माइंड का, हमारे कॉग्निशन का कैसे फंक्शनिंग हो रहा है, हाउ इट इज फंक्शनिंग. तो इसके लिए ही हैज गिवन 3 वर्ड, दैट इज एसिमिलेशन, accommodation and equilibration. Okay, he said कि क्या होता है जस्ट आफ्टर बर्थ. ओके, बच्चा के पास बहुत ही लिमिटेड स्कीमाज है, लाइक हाउ टू ब्रीथ, हाउ टू सक, उसके अलावा उसको और कोई रिस्पॉन्स करने नहीं आता है. ठीक है, पर धीरे धीरे हम लोग क्या होता है, न्यू चीज सीखते जाते हैं. तो जब हम लोग न्यू चीज जब सीखते हैं, तो सीखने के क्रम में समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, वी डू द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, वी अडेप्ट द न्यू थिंग्स. समटाइम्स क्या होता है कि न्यू थिंग्स को हम लोग एज इट इज अडॉप्ट कर लेते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि न्यू थिंग्स को हम लोग एज इट इज अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए वी मेक सर्टेन चेंजेस. तो वो क्या है आपका एकोमोडेशन
और जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच का जो बैलेंस है वो क्या है आपका इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इसको आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट कम द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है, क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो वो धीरे धीरे मान लो सकिंग से नाउ दिस understand how to crawl and how to move their hands slowly and then suppose कि कोई बच्चा है, छोटे बच्चे जनरली जब उनको कोई भी खिलौना दोगे so they are having a basic tendency कि वो खिलौने से कैसे खेलते हैं। उनको आप जब भी कोई भी चीज दो दे टेक एवरीथिंग टू देयर माउथ। ठीक है, कोई भी चीज का उनका रिस्पांस क्या है, वो हर चीज को उनके माउथ में लेके जाएंगे। कोई भी खिलौना हो, एनी टॉय दे पुट इट इन देयर माउथ, क्योंकि उनका स्कीमा क्या है कि किसी भी चीज को रिस्पॉन्स कैसे करना है, उसको माउथ में ले जाके। ठीक है, तो मान लो बच्चा किसी खिलौने से किसी टॉय से प्ले कर रहा है, वो उसको माउथ में ले रहा है। देन आपने उसको जस्ट गिवन हिम हर अ न्यू टॉय, आपने उनको एक न्यू टॉय दिया। ओके, एंड द टॉय इज मोर और लेस सेम इन शेप और साइज, ऐसा कि वो उनके अगर वो उनको माउथ में ले रहा है तो द टॉय उनकी माउथ में फिट आ रहा है, तो उनका उसके लिए रिएक्शन क्या है और क्या होगा बच्चे का, उस न्यू टॉय के साथ भी वो ओल्ड पैटर्न से उसको मुंह में लेके वो खेलेगा। ठीक है, बट दैट टॉय जो है वो उसके मुंह में जा पा रहा है, मीन्स उसका जो वो अपने ओल्ड स्कीमा से ही न्यू ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर रहा है, उसको न्यू ऑब्जेक्ट के साथ वो अपने ओल्ड स्कीमा से डील कर रहा है। एंड यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, मीन्स ओल्ड स्कीमा इज हेल्पिंग टू डील विद द न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू सिचुएशन। तो ये प्रोसेस क्या है आपका एसिमिलेशन, जहां पे वेर your existing schema help you to deal with the new situation or new object without changing the old schema। तो वो क्या होता है आपका assimilation। बट आपने उसी बच्चे को यू हैव गिवन अगेन अ न्यू टॉय, बट ये जो न्यू टॉय है ये थोड़ा सा साइज में क्या है, बड़ा है। ओके, नाउ चाइल्ड कैन नॉट प्ले विद द ओल्ड स्कीमा, मीन्स वो उसके मुंह में नहीं जा रहा है। चाइल्ड ट्राई, लेकिन वो टॉय इतना बिग इन साइज है कि वो उसके मुंह में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओल्ड स्कीमा इज नॉट वर्किंग। देन व्हाट चाइल्ड विल डू, मे बी वो he will try and then he थोड़ा irritate होगा and then you will see he may throw the toy, he may kick the toy, he may push the toy। ठीक है, वो टॉय को धक्का देगा, फेंकेगा या उसको जमीन में ऐसे स्क्रॉल करेगा। ओके, सो नाउ इन दैट वे ही डेवलप्ड अ न्यू स्कीमा, मीन उसका जो ओल्ड स्कीमा था कि टॉय को आप सिर्फ मुंह में लेते हो, नाउ इट्स नॉट वर्किंग। नाउ उसका रिस्पॉन्स क्या हो गया, उस सब्जेक्ट के साथ चेंज हो गया। ही कैन पुश, ही कैन थ्रो, ओके, ही कैन किक। तो क्या होता है कि जब आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा आपके न्यू ऑब्जेक्ट या न्यू सिचुएशन को डील करने के लिए हेल्प नहीं करता है, सो इन दैट सेंस यू डेवलप or you create or you discover certain new schema। that process is known as process of accommodation। means यहाँ पे आपका old schema जो क्या हो गया, वो new schema के response पे fit नहीं हो रहा है, then you are changing and you are coming with a new schema, so you are having a new or altered schema, so that process is known as accommodation। means you have accommodated with the new one। आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में एक न्यू स्कीमा क्या हुआ, एकोमोडेट हुआ। सो नाउ यू आर हैविंग मोर देन वन, मीन्स आप पहले से ज्यादा स्कीमा आपके पास में है। देन कम इक्विलिब्रेशन। व्हाट इज इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन इज अ प्रोसेस जहां पे वी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। क्योंकि क्या होता है कि वी आर हैविंग आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जहां पे स्कीमा आर फिक्स। तो मोस्टली जो हमारा नेचर है वी ट्राई टू एसिमिलेट, हम लोग पहले क्या करना चाहते हैं, वी ट्राई टू एसिमिलेट। और अगर आपका वो एसिमिलेशन का प्रोसेस जो है क्या हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर एकोमोडेशन। तो ये करने के लिए जो आपका एफर्ट होता है, जो आपका एक डिस्कम्फर्ट होता है, जो आपका एक डिसइक्विलिब्रियम का स्टेट होता है, उसको हम लोग बैलेंस करते हैं कैसे, इक्विलिब्रेशन से। मीन्स देयर विल बी अ हार्मोनी इन आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि आप
ओल्ड से न्यू की तरफ जा रहे हो। ओके, सो दैट इज द कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन द लाइट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग ही हैज गिवन हिज थ्योरी ऑफ, और यू कैन से ही गिवन द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, सो व्हाट इज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर? इसके साथ द स्कीमाज, हम लोग पैदा होते हैं, वी आर हियर विथ सर्टेन लिमिटेड स्कीमाज, बट एज मच एज वी आर कमिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, वी डेवलप मोर स्कीमा इन आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जो कि क्या क्या है? प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, and we develop more schema in our cognitive structure so that we can do our learning more and more. Okay, so ये जो I will show the few slides upon this, how we are having the process of cognitive functioning and how we are having the cognitive structures in our mind, so that you can understand more and you come to know so many things. Okay, so just follow the slide. Start the Piaget's theory of constructivism and developmental theory. As I told you, Piaget was a Swiss psychologist cum biologist, worked for several decades about children's cognitive development. He wanted to study how the developmental aspect of children's are working. Okay, as I told you, his theory also comes under constructivism, because constructivism is based on for the idea of individual construct their understanding and they are doing the active learning, where child is seen as a little scientist who understand the world and construct their own knowledge. Okay, as constructivism believes all learning is constructed, whether it is something we are taught or something we learn on our own. So as I told you कि constructivism में हम लोग क्या believe करते हैं कि learner construct their own knowledge, whether or not we are taught in a constructivist manner. Piaget believed we are constructing knowledge in all our learning. So that's why Piaget's theory comes under the constructivist approach also, because Piaget believed that we all construct our knowledge based upon our prior knowledge. So as I told you कि Piaget के theory का जो main aspect है, that is the cognitive functioning and cognitive structure, and in that functioning he talked about assimilation, accommodation and equilibration. You cannot understand the Piaget's theory of cognitive development or stages of development without understanding what is assimilation, what is accommodation and what is equilibration. Okay, so what happened when, what is the process of, as I told you कि schema. Okay, begging is a favorite schema used by babies to explore their वर्ल्ड. ओके, मतलब जनरली देखोगे बच्चों के पास अगर कोई भी चीज़ है वो उसको क्या करता है, पटकता है, रगड़ता है, उसका फेवरेट स्कीमा है किसी भी चीज़ पे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने के लिए. एंड एसिमिलेशन अकर्स व्हेन दे इनकॉर्पोरेट न्यू ऑब्जेक्ट इनटू द स्कीम, और वो अपने पुराना जो उनका सोचने का जो पैटर्न है, पुराना जो उनका स्कीमा है, उसमें न्यू थिंग को भी मैच कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया उनका एसिमिलेशन. बट एकोमोडेशन अकर्स व्हेन द न्यू ऑब्जेक्ट does not fit the existing schema. लेकिन जब उनका वो न्यू ऑब्जेक्ट जो है, उनका वो जो ओल्ड स्कीमा है पटकने का, झटकने का, उसमें अगर नहीं फिट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एकोमोडेशन. ओके, सो नाउ लर्न व्हाट स्कीमा इज. Schema describe both the mental and physical action involved in understanding and knowing. Schemas are categories of knowledge that help us to interpret and understand the world. In Piaget's view, schema include both a category of knowledge and the process of obtaining that knowledge. Okay, as I can't read much. Okay, as I told you, schema क्या है? It is in our mental cognitive structure और basic structure of our mind, जो कि according to that हमारा behavior pattern क्या होता है,
कंस्टिट्यूट होता है। मीन्स हम जो भी बिहेवियर सोच करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई स्कीमा है। एज आई टोल्ड यू कि इन आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर वी आर हैविंग सर्टेन स्कीमास, जो स्लोली एंड स्लोली क्या होता है विद द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन वो इंक्रीज करता है, एंड वी आर हैविंग आवर डेवलप्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ओके, सो एज यू नो दैट कि येलो कलर, जनरली बच्चा मान लो फर्स्ट टाइम वो उसने अगर एक येलो बनाना देखा तो व्हाट ही और शी विल थिंक कि ओनली बनाना आर येलो इन कलर, लेकिन धीरे धीरे वो सोचता है कि नो द फ्लावर कैन बी येलो इन कलर, ओके, सम ऑब्जेक्ट कैन बी येलो इन कलर। सो नाउ ही इज डेवलपिंग मोर स्कीमा कि येलो कलर में क्या क्या चीज अवेलेबल हो सकता है। ओके, लाइक फॉर अनदर पिक्चर यू कैन सी कि चाइल्ड कैन सी डॉग, एक सपोज उसने जो डॉग देखा है दैट इज बिग इन साइज, नाउ हियर शी विल थिंक कि जो ये बिग साइज का जो एनिमल है दैट विल बी अ डॉग, और जो स्मॉल साइज का उसने अगर कोई छोटा डॉग देखा देन चाइल्ड कैन कंफ्यूज इट इज डॉग और नॉट। सो नाउ दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट डॉग का डिफरेंट शेप एंड साइज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर ब्रीड। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन है, जहां वो मोर स्कीमास को उसके माइंड में ला रहा है कि डॉग का डिफरेंट शेप एंड साइज हो सकता है। ओके, सो व्हाट इज एसिमिलेशन कि क्या है, जब आप न्यू स्कीमा में ओल्ड स्कीमा के तरह क्या करते हो, ओल्ड स्कीमा के पैटर्न से ही उस पर आप रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्स करते हो, और आपका वो चीज क्या होता है, वो चीज आपका कंप्लीट होता है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब तो दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। जैसे फर्स्ट का मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे किसी बच्चे को आपने हॉर्स, कुछ बच्चे ने हॉर्स को देखा, देन दे विल आस्क यू कि ये क्या है, देन यू विल से कि द नेम ऑफ दिस एनिमल इज हॉर्स। सो द चाइल्ड ऑब्जर्व कि इसका हेयर्स है, बॉडी में इसका हेयर्स है, ओके, एंड देन देयर इज अ 4 legs है, एक टेल है, ओके। सो आफ्टर फ्यू टाइम जो है वो चाइल्ड क्या किया, उसने फिर से देखा किसको, एक cow को, okay, and then you see कि cow is also having 4 legs, 1 tail and hair on the body, then what will be the reaction of the child will think कि okay, जैसे horse में ये सब ऐसा था, the same thing is in the cow, then it is the name of the एनिमल इज ऑल्सो हॉर्स, बट उसको ये पता नहीं है कि इट इज नॉट हॉर्स, दिस इज काउ, क्योंकि उसका वो ओल्ड स्कीमा था जो एनिमल को जज करने का, और उसका वो एक नाम जान रहा है कि अगर ऐसा दिखता है तो ये क्या है, हॉर्स है, अगर सिमिलर दिखने में उसको काउ लग रहा है तो वो काउ को भी वो क्या समझ रहा है, हॉर्स। तो ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एसिमिलेशन, कि वो अपने ओल्ड पैटर्न से न्यू एनिमल, न्यू ऑब्जेक्ट को भी उसने क्या किया, जज किया। ओके, नाउ सपोज अगर वो देखे हॉर्स का बच्चा, ओके, हॉर्स का बच्चा ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, बट साइज में वो क्या है, छोटा है। नाउ द चाइल्ड विल थिंक कि ये तो 2 4 लेग है, हेयर्स है, टेल है, लेकिन साइज क्या है, स्मॉल है, नॉट एज बिग एज हॉर्स और काउ, देन व्हाट विल बी द नेम ऑफ एनिमल। तो वो अपने ओल्ड स्कीमा से ही और सी कैन नॉट लेबल दैट स्मॉल हॉर्स एज हॉर्स, क्योंकि उसका वो ओल्ड स्कीमा, उसका जो इमेज है वो इसके साथ नहीं जा रहा है। ओके, सो जहाँ पे आपका ओल्ड स्कीमा के साथ आपका न्यू स्कीमा का मैचिंग होता है, वहाँ पे दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। मीन्स आप ओल्ड स्कीमा से न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू सिचुएशन के ऊपर क्या करते हो, रिएक्ट करते हो, एंड वहाँ पे क्या होता है, आपका वो चीज एसिमिलेट हो जाता है, यू डोंट हैव टू चेंज योर स्कीमा। ठीक है, बट एकोमोडेशन इसका अपोजिट है, इट इन्वॉल्व्स अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा और आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंस। न्यू स्कीमा मे ऑल्सो बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, सी जैसे नाउ चाइल्ड सॉ द स्मॉल हॉर्स बट इज अनेबल टू नो कि इसका नाम क्या होगा, दैट टाइम यू हैव टू टेल कि ये क्या, दैट इज अ किड ऑफ द बिग हॉर्स। नाउ उसका एक न्यू स्कीमा बना, ओके, मीन्स बिग एनिमल्स आर हैविंग देयर स्मॉल यंग वंस ऑल्सो, और उनका शेप और साइज ऐसा होता है। सो नाउ यू डेवलप अ न्यू स्कीमा कि दे आर हैविंग अ यंग वन एंड इनका शेप साइज ऐसा होता है। So that is the difference between assimilation and accommodation. Okay, in assimilation
see the example, saw this four-legged animal for the first time. Existing schema, this four-legged pet is a dog. Okay, so अगेन चाइल्ड विल, अगर आपने फिर कोई दूसरा डॉग भी देखा तो आपने उसको क्या बोल दिया, डॉग. ओके, एकोमोडेशन में क्या डिफरेंस है, एग्जिस्टिंग स्कीमा, his four-legged pet is a dog. Okay, sometimes point out that is a cat though it has four legs. So अपने डॉग से अभी आपने काउ को देख लिया, सॉरी कैट को देख लिया, एंड कैट इज ऑल्सो हैविंग फोर लेग, वन टेल. नाउ चाइल्ड इज कंफ्यूज कि इट इज डॉग या फिर डॉग नहीं है. सो रियलाइज दैट ऑल फोर लेग एनिमल्स आर नॉट डॉग. सो इन दैट सेंस यू हैव दे नो कि डॉग के अलावा भी अदर एनिमल एग्जिस्ट, दे आर known as cat. So this is the process of assimilation and accommodation. क्योंकि इसमें जो between है that is new situation, कि जब भी कोई new situation होता है और वो new situation से आपका क्या होता है, ओल्ड स्कीमा मैच हो रहा है, प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन है, सब कुछ क्या है, कंट्रोल में है, देन दैट इज द एसिमिलेशन. लेकिन जहाँ पे न्यू सिचुएशन है लेकिन आपका जो है ओल्ड स्कीमा उसके साथ काम नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, देन वहाँ पे एक प्रोसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम स्टार्ट होता है, एंड देन यू हैव टू जनरेट एंड यू हैव टू कम अप विद द न्यू स्कीमा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एकोमोडेशन. Okay, so equilibrium, you know, changing basic assumption following adjustment is assimilated knowledge. So equilibrium very important क्योंकि यहाँ पे we try to make a balance between the process of assimilation and accommodation. Okay, so in short you can say कैजिक का जो लर्निंग का थ्योरी का जो तीन मेन कंस्टिट्यूएंट है, दैट इज इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. व्हाट इक्विलिब्रेशन इज, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, वी एडजस्ट आवर आइडियाज टू मेक सेंस ऑफ रियलिटी. एसिमिलेशन में क्या है, प्रोसेस ऑफ मैचिंग एक्सटर्नल रियलिटी टू एन एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. एकोमोडेशन में क्या है, व्हेन देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द existing cognitive structure and the thing being, the child will recognize her thought. Okay, means जहाँ पे आप न्यू स्कीमा को क्या करते हो, डेवलप करते हो. Okay, so that was the main concept of cognitive structuring and cognitive functioning which given by Jean Piaget, जो कि बहुत ही क्या है, that is very very basic, क्योंकि before having the proper understanding of what schema is, what assimilation is, what accommodation is, and what the process of equilibration is, you cannot understand the process, or you can say the four developmental aspect of Piaget's theory of cognitive development. Okay, as I told you कि on the basis of his cognitive structure and cognitive functioning, Piaget has given the theory of cognitive development, where he has given the four stages of cognitive development. Means हमारा इन्फेंसी से जो एडोलेसेंट का जो टाइम होता है, जो हमारा एज है, उसमें कैसे हमारा बायोलॉजिकल और हमारा इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट होता है, क्या जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, उनको लेकर के ही हैज डेवलप्ड द थ्योरी, एंड उसको उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रॉम सेंसरी मोटर स्टेज टू pre-operational stage. He has given 4 stages, 4 steps, that is sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, and formal operational stage. Okay, so in my next video lecture we will talk about these 4 stages of cognitive development, where Piaget talked about कि how a learner जो है, जो by birth के time he was get birth with limited structure, and he was, and उसका जो पूरा out of mind, sorry out of sight and out of mind का जो उसका state होता है, उससे how he reached to the level of formal operational stage, their brain can assume the thing, hypothesize the thing. Okay, so that we will discuss in our next lecture. So I hope you have understood the concept of cognitive development, and basically what is the concept of cognitive structure and cognitive functioning. If any doubt or any query, just let me know. I will try to make you understand. Okay, so
keep studying the things. Okay, and thank you so much for your patience hearing. In my next lecture